Dear NEET and JEE aspirants, hello and welcome to Green Chemistry offered by NPTEL classes. Today, I will discuss solution of problem which was asked in mains 2008 with you. In this problem, we are provided 4 different nucleophiles. Nucleophile A has nature of nucleophile A is phenoxide ion, nature of nucleophile B is acetate ion, nature of nucleophile C is hydroxide ion, and nature of nucleophile D is methoxide ion. Considering substrate is same, reactant is same for all these 4 nucleophiles, and other conditions, remaining conditions also are same for these nucleophiles. Substrate is same for these 4 nucleophiles, remaining conditions also remain same for these 4 different nucleophiles. Still, rates of reaction, rate of nucleophilic substitution reaction will be different, and that difference will be because of difference in nature of nucleophile, which in turn can be attributed to difference in their nucleophilic character or difference in strength of their nucleophilicity. So in the question, problem is we have to arrange these nucleophiles in such an order that will represent decreasing order of rates of reaction. And since difference in rates of reaction is due to difference in nature of nucleophiles, so decreasing order of rates of reaction will be same as decreasing order of nucleophilicity of these 4 different nucleophiles. So idea is that we need to have knowledge of nucleophilic character or strength of nucleophilic character of these 4 nucleophiles. We need to have knowledge which among these 4 nucleophiles has strongest nucleophilicity, largest nucleophilicity, and which among these 4 nucleophiles is weak nucleophile. And then order of nucleophilicity, decreasing order of their nucleophilicity will determine decreasing order of rates of reaction. Step first of solution will be we have to we should be somehow able to write decreasing order of nucleophilic character of these nucleophiles. Somehow we have to determine what is the decreasing order of nucleophilicity of these 4 different nucleophiles. And idea is that nucleophilicity by nucleophilicity I mean strength of nucleophile. Strength of nucleophile. Nucleophilicity generally depends on basic strength. Basic strength. इन चार में जिसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा उसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर, उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी भी ज्यादा होगी. इन 4 में फिनॉक्साइड आयन में, एसीटेट आयन में, हाइड्रोक्साइड आयन में, मेथॉक्साइड आयन में जिसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी भी ज्यादा होगी, उस न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, उसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा.
और रेट ऑफ रिएक्शन उस पर्टिकुलर न्यूक्लियोफाइल के साथ ज्यादा होगी। सो वी आर ट्राइंग टू रिलेट न्यूक्लियोफिलिसिटी विद बेसिक स्ट्रेंथ। अगर हमें इन चार का ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ पता है, अगर हमें इन चार में ये पता है कि किसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है और किसका कम है, हम बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर की बेसिस पे बताएंगे, वही न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर होगा और वही बनेगा ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। मगर हमें बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर पहले बनाना है। बेसिक स्ट्रेंथ इनफैक्ट मैं यूज करूंगा कंजुगेट बेस स्ट्रेंथ। कंजुगेट बेस स्ट्रेंथ इन टर्न डिपेंड करता है इनवर्सली ऑन एसिड कैरेक्टर। एसिडिक कैरेक्टर यहां लॉरी ब्राउनिस्टेड कंसेप्ट मैं अप्लाई कर रहा हूं कि अगर एसिड स्ट्रांग है उसकी कंजुगेट बेस होगी वीक, और इन अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन अगर बेस वीक है इसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर भी जनरली वीक होगा। देन ये सारी स्टोरी अब एसिडिक कैरेक्टर पे आ गई। मुझे पता होना चाहिए फिनॉक्साइड का एसिड, फिनॉक्साइड कंजुगेट बेस है और इसका एसिड होगा फिनॉल। एसिटेट आयन का कंजुगेट बेस है एसिटिक एसिड की। हाइड्रोक्साइड आयन कंजुगेट बेस है वाटर की। मेथॉक्साइड आयन कंजुगेट बेस है मेथनॉल की। सो एक एसिड है फिनॉल। पहले मैं आपको बताऊंगा एसिडिक कैरेक्टर ऑर्डर क्या है। एसिडिक कैरेक्टर ऑर्डर, फिनॉल, एसिटिक एसिड, वाटर, अल्कोहल, इन सब में ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर है एसिड का। एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है फिनॉल से, फिनॉल ज्यादा स्ट्रॉन्गर है वाटर से, और वाटर ज्यादा स्ट्रॉन्गर है एसिड अल्कोहल से। इन सब में वीकेस्ट एसिड जो है वो है अल्कोहल। अल्कोहल्स आर वीकर एसिड्स देन वाटर, वाटर इज वीकर एसिड देन फिनॉल, फिनॉल आर वीकर एसिड्स देन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। एसिडिक कैरेक्टर ऑर्डर की बेसिस पे मैं बता पाऊंगा ना कंजुगेट बेस स्ट्रेंथ क्या होगा, वो इसका इनवर्स होगा। इसलिए कंजुगेट बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, कंजुगेट बेस की स्ट्रेंथ का ऑर्डर इसका रिवर्स होगा। सबसे ज्यादा कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगी वीक एसिड की। वीक एसिड इनमें अल्कोहल है, इसलिए इसकी कंजुगेट बेस होगी स्ट्रॉन्ग। मेथॉक्साइड आयन स्ट्रॉन्गर होगा, फॉलोड बाय वाटर की कंजुगेट बेस वो है हाइड्रोक्साइड आयन, फॉलोड बाय फिनॉल की कंजुगेट बेस वो है फेनॉक्साइड आयन। लास्ट पे सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड, उसकी कंजुगेट बेस जो एसिटेट आयन है वो होगा, उसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगा। और ये रिलेशन में यूज करूंगा कि बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर यूजुअली डिटरमाइन करेगा न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर। इसलिए न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर का ऑर्डर, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर होगा यही। इस मेथॉक्साइड आयन ज्यादा स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है हाइड्रोक्साइड आयन से, हाइड्रोक्साइड आयन ज्यादा स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है फेनॉक्साइड आयन से, और फेनॉक्साइड आयन ज्यादा स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है एसिटेट आयन से। एज अ रिजल्ट रेट ऑफ रिएक्शन भी, ऑर्डर ऑफ रेट्स ऑफ रिएक्शन भी यही होगा।
रेट्स ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन ऑर्डर भी यही होगा, CH3 सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगी, रिएक्शन सबसे फास्ट होगी मेथॉक्साइड जब हम यूज करेंगे न्यूक्लियोफाइल, फॉलोड बाय हाइड्रोक्साइड जब यूज करेंगे न्यूक्लियोफाइल, फॉलोड बाय फिनॉक्साइड आयन जब यूज करेंगे न्यूक्लियोफाइल, फॉलोड बाय एसीटेट आयन जब यूज करेंगे न्यूक्लियोफाइल। सो इस प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व करना था। सॉल्यूशन में पहला सेटअप मैंने बताया, न्यूक्लियोफिलिसिटी जनरली रिलेट हम करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ के साथ। जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा वही न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर होगा। आई मीन टू से बेसिक कैरेक्टर अगर ज्यादा है, न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर भी ज्यादा होगा जनरली। और बेसिक स्ट्रेंथ इन टर्न, बेसिक स्ट्रेंथ डिटरमाइन करने के लिए कंजुगेट और लॉरी ब्रोनिस्टर कंसेप्ट इस्तेमाल हमने किया कि कंजुगेट बेस, अगर एसिड स्ट्रांग होगा उसकी कंजुगेट बेस होगी वीक। तो पहले मैंने ये जो 4 न्यूक्लियोफाइल्स दिए गए थे, फिनॉक्साइड आयन, एसीटेट आयन, हाइड्रोक्साइड आयन और मेथॉक्साइड आयन, इनके पैरेंट एसिड्स को मैंने पहले आइडेंटिफाई किया कि फिनॉल होगा, एसिटिक एसिड होगा, वाटर होगा और मेथनॉल होगा। और इनमें जो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा उसकी कंजुगेट बेस होगी वीक और वो वीक न्यूक्लियोफाइल होगा। और इनमें जो वीक एसिड होगा उसकी कंजुगेट बेस होगी स्ट्रॉन्ग और वो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होगा। उसके साथ रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्ट होगा। कंसिडरिंग सबस्ट्रेट इन चारों के लिए सेम है, रिमेनिंग कंडीशंस भी इन 4 के लिए सेम है। वही मैंने यहां राइट किया, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर यूजुअली वही होगा जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर डिटरमाइन करने के लिए कंजुगेट एसिड बेस पेयर मुझे बनानी पड़ी, लॉरी ब्रोनिस्टर कंसेप्ट इस्तेमाल करना पड़ा कि कंजुगेट बेस की स्ट्रेंथ इनवर्सली डिपेंडेंट है ऑन एसिडिक कैरेक्टर, एसिड स्ट्रॉन्ग, कंजुगेट बेस वीक एटसेट्रा। एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर पहले मैंने डिटरमाइन किया कि एसिटिक एसिड सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड है, एसिटिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड है फिनॉल से, फिनॉल स्ट्रॉन्गर एसिड है वाटर से, वाटर स्ट्रॉन्गर एसिड है अल्कोहल से, अल्कोहल इज इनफैक्ट वीकर एसिड देन वाटर। अब बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर इसका अपोजिट होगा, रिवर्स होगा। मेथॉक्साइड आयन सबसे स्ट्रॉन्गर बेस है, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर भी इसका सबसे ज्यादा होगा। एसीटेट आयन वीकेस्ट बेस है, इनमें इसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर भी सबसे वीक होगा, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर होगा मेथॉक्साइड आयन स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है देन हाइड्रोक्साइड आयन, जो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है फेनॉक्साइड आयन से, जो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है एसीटेट आयन से। इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा फास्ट होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रेट सबसे फास्ट होगा जब हम इन 4 में मेथॉक्साइड आयन को यूज करेंगे एज न्यूक्लियोफाइल। और सबसे कम रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सबसे कम रेट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का तब होगा जब इन 4 में हम एसीटेट आयन को यूज करेंगे एज न्यूक्लियोफाइल। और रेट्स का ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, सबसे फास्ट रेट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की होगी विद मेथॉक्साइड आयन, फॉलोड बाय हाइड्रोक्साइड आयन, फॉलोड बाय फेनॉक्साइड आयन, और सबसे कम रिएक्शन रेट होगी एसीटेट आयन के साथ। दिस इज व्हाट आई हैव गॉट फॉर यू टुडे। सी यू tomorrow. Take good care of yourself, take good care of your work as well. Allah Hafiz.